A very pleasant morning to all the dear students of class 9. I hope you all are absolutely well and safe at home. And also, in the previous video, we have started the chapter number 4, and you have got two videos, and we have done up to the exercise number 4.2. So, moving further, today we are going to start with the graph of linear equation in two variables. Okay, in the previous video, you have understood what is the solution of a linear equation in two variables. Okay, and the solution that you found was algebraically. It means you are getting the value of x and y. Okay, it means you are finding the value of x and y for which the equation is satisfied. Putting the value of x, you are getting the value of y, and you get a pair. You get a solution in a pair of x and y, in which the first term is x and second term is y, and you say that this pair is the solution of linear equation in one variable. And also you got to know that a linear equation in one variable has infinitely many solutions, because जब आपके पास एक equation है x and y में, then you will put the value of x and you can get the value of y accordingly. The value of x, जो भी आप x की वैल्यू पुट करेंगे उसके अकॉर्डिंग आप y की वैल्यू हमेशा मिलती रहेगी. रैशनल, इरेशनल, रियल नंबर, x and y were the real numbers. Okay, so I have made you understood the basic meaning of solution of linear equation. Now today the solution of linear equation can be represented pictorially. It means in form of picture, it means in form of graph. So हम आज देखें कि graph of a linear equation क्या होगा. So taking an example of linear equation, so let us consider this equation. Okay, consider this equation and find the solutions first. So you have x plus 2y is equals to 6, linear equation in two variable. Now we have to find the solution. So you know that two solutions तो हमने ऐसे ही निकाल लेने थे, that when we have to find the two solution, we can put x is equals to 0. Okay, so here we will get uh, we get 2y is equals to 6, y is equals to 3. Okay, so 0 comma 3 is a solution of this equation. Similarly, put y is equals to 0, we get x is equals to 6. Directly you can see from here. Okay, so it is 6 comma 0. X is written at the first term and y is at second term. So 6 comma 0 is a solution of this equation. Okay, now put x is equals to 1, or you can say we will not find the I am taking simple example. So हम fractions को avoid करते हैं अभी ताकि आपको समझ में आए. Put x is equals to 2. Okay, then y is equals to, you can see from here the equation is 2 plus 2y is equals to 6. So we will get 2y is equals to 4 or y is equals to 2. So 2 comma 2 is a solution. Or put x is equals to 4, we will get y is equals to 1. So 4 comma 1 is a solution. So you can see from here, if I make a table, अगर मैं एक टेबल इस तरीके से बना लेती हूँ for the value of x and y. So for x0 I'm getting y as 3, for x2 I'm getting y as 2, and for x is equals to 4 I'm getting y is equals to 1, for x is equals to y is equals to 0 I'm getting x is equals to 6. So likewise आप कितनी भी values निकाल सकते हैं. Okay, सो बेसिकली ये x एंड y के कोऑर्डिनेट्स निकल गए, मीन्स ये पेयर निकल गए जो इस इक्वेशन के सॉल्यूशन है. नाउ हम इसको ग्राफ पर देखेंगे कि हम इस सॉल्यूशन को ग्राफ पर रिप्रेजेंट कैसे करेंगे. ठीक है, फॉर दिस
I am telling you some basic concept of the graph which were to be discussed in the coordinate geometry, लेकिन यहाँ पर थोड़े से concept की ज़रूरत है and I am taking that. So with the help of graph I will explain. So in 8th standard you have an idea of graphs in the chapter the introduction to the graph. So here you can see graph. However, we use pencil in exam to solve the graph questions, but here pencil से आपको visible नहीं होता, therefore I am using pen to make you visible, clearly visible. So you can see that there are two lines. Okay, two lines. This is the horizontal line, this is your vertical line. The horizontal line is represented as x-axis. Okay, we name it as x-axis. This is x. This is called as origin, represented by O. Your this point, the intersection point of this horizontal and vertical lines, which are perpendicular to each other. Okay, and this terminal is represented as x dash. We say this horizontal line as xo x dash. Okay, and this is your y axis, this is your y dash. At below we are having y dash, you can see from here. Okay, like this. So this is your graph. The graph is divided into 4 quadrants. Okay, this is called as first quadrant, this is called as second quadrant. These are quadrants. First quadrant, second quadrant, this is third quadrant, and this is your fourth quadrant. This is your fourth quadrant. अब जब आपको एक ग्राफ पर, that is discussed in the coordinate geometry in detail, but you can see that जब भी हमें किसी एक पॉइंट की बात करते हैं, like जो हमारा सॉल्यूशन ही आया है, we have the solution as 0,3. ओके, या 2,2 ले लेते हैं. ठीक है, 2,2 इज़ अ पॉइंट जिसके आपके 2,2 जब ये पॉइंट है हमारे पास, तो इसके ये दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट. ठीक है, therefore it is called as coordinate geometry, it is named as coordinate geometry. So this is a point, a pair point, ये coordinates हैं. The first one is called as, the first one that is x axis या x वाला point is called as abscissa, and the y वाला is called as ordinate. ये इनके दूसरे नाम है, x एक्सिस एंड y एक्सिस, या x पॉइंट y पॉइंट को एब्सिसा या ऑर्डिनेट भी बोलते हैं. सो अभी के लिए अगर आपको 2,2 को रिप्रेजेंट करना है ऑन द ग्राफ, तो आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ये आपका जब x एक्सिस है, एट दिस साइड आपके पॉजिटिव नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5 6. ठीक है, लाइक नंबर लाइन को अगर आप इमेजिन करें तो एट दिस साइड योर -1, ये पॉइंट्स होते हैं, दीज आर एट इक्वल डिस्टेंस लाइक दिस, एंड दिस इज योर -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन. एंड दिस इज योर y एक्सिस. y पर भी at the upper side there are positive points 1 2 3 4 5, and here -1 -2 -3 -4 -5, which are equidistant, because you know the graph के हर एक lines equidistant है. So you have these points. Now 2,2 को अगर represent करना है तो पहले, because this is x coordinate, ठीक है, ये x का coordinate है, so you walk origin से आप x की तरफ चलेंगे 2 पॉइंट, आप यहाँ पर चले 2, उसके बाद यहाँ पर हैं, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग y पर 2 चलेंगे तो आपको पॉइंट, इनका इंटरसेक्शन पॉइंट जो मिलेगा वो कौन सा होगा? ये वाला पॉइंट. दिस इज योर 2,2, दिस इज योर 2,2. ओके, दिस इज बेसिकली द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और यही आपका रिप्रेजेंटेशन होता है किसी पेयर को रिप्रेजेंट करना. और हम यहाँ ये इसलिए कर रहे हैं बिकॉज द सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन एग्जिस्ट इन पेयर ऑफ एक्स एंड वाई, और हमें ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना है तो हमें उस पॉइंट को, उनको एक्स एंड वाई के कोऑर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा. सो दिस इज योर 2,2. नाउ इफ आई टेक अनदर सॉल्यूशन वाज 0,3. सो 0 इज दिस इज 0,0. ओके, 0 इज दिस, तो x एक्सिस पर 0 है, इट मीन्स x एक्सिस पर मूवमेंट नहीं करनी, ना ही लेफ्ट साइड ना ही राइट साइड, x एक्सिस पर कोई मूवमेंट नहीं है बिकॉज x आपका 0 है व्हेन आई एम रिप्रेजेंटिंग 0,3. सो 0 इज हेयर. नाउ 3 हमें कहाँ पर चलना है? 3 y पर चलना है. ओके,
सो बिकॉज इट इज़ 3 तो पॉजिटिव अपर साइड चलेंगे. सो 1 2 3 दिस इज योर पॉइंट दैट इज कॉल्ड एज 0,3. Okay, this is 0,3, this is 2,2. Now you have got the 2 points that are solution of an equation. Okay, now when I will join these points इन पॉइंट्स के, अभी तो यहाँ पर ये आपको सी आप देख सकते हैं, अभी ये यहाँ पर थोड़ा मैंने थिक कर दिया है डॉट, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है. बट हम पॉसिबल इन योर एग्जाम हम पॉसिबल यही रखते हैं कि ये डॉट एकदम थिन हो, थिक नहीं हो. एंड वी कैन सी द डॉट इन अ, वी पुट द स्केल एंड वी सी द डॉट इन कमिंग इन अ सिंगल स्ट्रेट लाइन. ठीक है, बोथ द डॉट्स, दोनों डॉट आपके जो दोनों सॉल्यूशन है एक सिंगल स्ट्रेट लाइन पर जब आ रहे हैं, आप इन्हीं दो डॉट को फोकस करेंगे तो ये आपको इंटरसेक्शन दिख रहा है इस वाले पॉइंट पे, और ये यहाँ पर इस पॉइंट पर दिख रहा है. जब आप इसको ड्रॉ करेंगे, you draw a single straight line by using these 2 points which are the solution of the linear equation. जब आप इस लाइन को ड्रॉ करते हैं, then this linear line, this single straight line represent the solution of the equation. ये आपका सॉल्यूशन रिप्रेजेंट कर रही है किसी इक्वेशन का x + 2y = 6. x + 2y = 6 का सॉल्यूशन क्यों है ये इक्वेशन? क्योंकि जब आप इस इक्वेशन में 2,2 पुट करेंगे, आप देख सकते हैं पुट करके, देन LHS विल बिकम इक्वल्स टू RHS. जब आप इस इक्वेशन में 0,3 पुट करेंगे, देन LHS बिकम इक्वल्स टू RHS. और नेक्स्ट थिंग आप देखिए, 2 पॉइंट्स तो सॉल्यूशन मैंने रिप्रेजेंट करके ज्वाइन किया है. बाकी टू सॉल्यूशन जो हैं इसके, कौन से सॉल्यूशंस हैं? बाकी 2 सॉल्यूशंस इसके हैं, ये सेपरेट है, इसको ड्रॉ मत, इसको लिखना नहीं. ओके, तो बाकी 2 सॉल्यूशन कौन से हैं इसके? 4,1 जो आपने फाइंड किए थे, एंड 1 इज 6,0. आपने ये 2 सॉल्यूशन फाइंड किए थे. तो लेट अस सी कि ये बाकी के 2 बचे हुए सॉल्यूशन क्या इस लाइन पर लाई करते हैं, whether these 2 solutions lie on this line. So you can see from the graph that here ये पॉइंट यहाँ पर इंटरसेक्ट करके जा रहा है द एक्स एक्सिस, एंड यू कैन सी दैट इट इज इंटरसेक्टिंग. मैंने आप ही के सामने बिल्कुल स्केल इन 2 पॉइंट्स की हेल्प से बनाया है लाइन, एंड एट दिस पॉइंट यू कैन सी दैट इट इज इंटरसेक्टिंग 6,0. ठीक है ना, ये ऑटोमेटिकली खुद ही उसको इंटरसेक्ट करके जा रहा है 6,0 को. ठीक है, क्योंकि इस लाइन का ये सॉल्यूशन है. 4,1 को चेक कर लीजिए, देखिए 4 इज हेयर. 4,1 आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? यू विल मूव 4 टूवर्ड द एक्स एक्सिस. ओके, यहाँ पर मूव कर लिया. उसके बाद 1 टूवर्ड द वाई एक्सिस. दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट का क्या है? ये वाला पॉइंट. मीन्स 4 टूवर्ड द एक्स एक्सिस दिस, एंड 1 टूवर्ड्स द वाई एक्सिस, सॉरी 4 टूवर्ड द एक्स एक्सिस आप यहाँ पर मूव करके आए, एंड 1 टूवर्ड द वाई एक्सिस दिस. सो इट इज योर 4,1. तो आप देख रहे हैं द अदर 2 सॉल्यूशन 4,1 एंड 6,0 आर ऑटोमेटिकली लाइंग ऑन दिस लाइन. इट मीन्स दैट यहाँ से कंक्लूजन ये निकल के आता है कि एक लीनियर इक्वेशन के जब आप उसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो उसके जितने भी सॉल्यूशंस होंगे, बिकॉज यू नो दैट अ लीनियर इक्वेशन हैज़ इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, तो उसके जितने भी सॉल्यूशन होंगे वो सारे के सारे उस लाइन पर ही लाई करेंगे. अगर कोई पॉइंट ऐसा है जो उस लाइन पर लाई नहीं कर रहा है तो वो पॉइंट उसका सॉल्यूशन नहीं होगा. इसीलिए ये जो लाइन आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, जहाँ पर ये हाफ से इस ग्राफ के इस बॉक्स के हाफ से निकलकर गुजर रही है, इस पॉइंट को भी आप फाइंड करेंगे तो आपको ये पॉइंट भी मिल जाएगा. एक्स की वैल्यू 1 पुट करके आप पॉइंट फाइंड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये वाई का कौन सा पॉइंट है, ये कौन सा कोऑर्डिनेट है. ठीक है, एक्स कोमा वाई की. इट मीन्स इसके जितने भी सॉल्यूशन होंगे सब इस लाइन पर लाई करेंगे. सो this line represents the solution of this equation x plus 2y is equals to 6, and the points which do not lie on this line are not the solution of this equation. यहाँ से ये conclusion निकल के आता है. ओके, हम चेक करके देख सकते हैं. सपोज करिए कि हमें ये चेक करना है कि 2,1 इस लाइन का सॉल्यूशन है या नहीं, मीन्स इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं. तो 2,1 आप अगर आपसे क्वेश्चन किया, मान लीजिए कि आपको ये ग्राफ दे दिया, ओके बिल्कुल यही एग्जैक्टली ग्राफ दे दिया, एंड 1 मार्क में आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया
कि टेल वेदर 2,1 इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस ग्राफ ऑफ दिस इक्वेशन और नॉट। ठीक है ना, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं 2,1। तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, यू जस्ट ऑब्जर्व द ग्राफ। आप इंस्पेक्शन करेंगे, ग्राफ को आप देखेंगे एंड यू कैन सी दैट द पॉइंट 2,1 जो यहाँ पर लाई करेगा वो इस इक्वेशन पर लाई नहीं कर रहा है। देयरफॉर यू विल से सिंस 2,1 डज नॉट लाई ऑन दिस लाइन, देयरफॉर 2,1 इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, और आप पुट भी करके देख लीजिए, x और y की वैल्यू 2,1 पुट करेंगे तो LHS इक्वल्स टू RHS नहीं आएगा। सो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। अगर आपने ये वीडियो अच्छी तरीके से देखी, बिकॉज इट हैज़ बीन, मुझे लगता है वीडियो थोड़ी बड़ी हो गई है, बट अगर आपने ये वीडियो अच्छी तरीके से देख ली एंड इस कॉन्सेप्ट को समझ लिया जो मैं आपको समझाना चाहती हूँ, देन यू विल बी एबल टू सॉल्व द एक्सरसाइज। हाउएवर आई विल डिस्कस द एक्सरसाइज with you. Okay class? Okay class 9, discussing the exercise 4.3. Question number 1 is draw the graph of each of the following linear equations in 2 variables. Okay, तो मैं फर्स्ट पार्ट आपके लिए सॉल्व कर रही हूँ, इसको प्रॉपरली देखिएगा। आप बाकी के पार्ट्स भी इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। सो व्हाट यू विल गेट, द इक्वेशन इज the equation is x plus y is equals to 4. Okay, so here you can see that for the value of x I have to find the value of y, है ना। तो आप क्या करेंगे, इट इम्प्लाइज आप इसको पहले ही y की फॉर्म में लिख लीजिए, y is equals to 4 minus x। ठीक है, क्योंकि मुझे y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो मैंने इसको y के इक्वल्स में लिख लिया कि y के इक्वल्स y एक तरफ कर लिया एंड बाकी सारी टर्म्स को एक तरफ ट्रांसपोज कर देंगे। सो और इसके बाद y इज इक्वल्स टू 4 माइनस एक्स के बाद वी विल मेक द टेबल। मेकिंग अ टेबल इज अ बेटर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सॉल्यूशन। ओके, वहाँ पर मैंने आपको इसलिए किया, इसलिए इस तरीके से एक्सप्रेस किया क्योंकि मुझे आपको डिटेल में समझाना था। बट मेकिंग अ टेबल एंड एक्चुअली टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन वी नीड 2 पॉइंट्स। ठीक है, क्योंकि किसी भी लाइन को, किसी सिंगल स्ट्रेट लाइन को ज्वाइन करने के लिए, ठीक है, मुझे 2 पॉइंट्स की ज़रूरत पड़ती है एक लाइन को बनाने के लिए। सो एक सिंगल पॉइंट से भी एक लाइन पास होती है, बट व्हेन आई वांट टू ड्रॉ अ फिक्स लाइन तो मुझे कोई ए बी पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स एटलीस्ट चाहिए होते हैं। सो 2 पॉइंट्स, अगर आप 2 सॉल्यूशन निकालेंगे तो भी आप किसी लीनियर इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, उसका सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। बट फॉर अ बेटर ग्राफ एंड करेक्ट ग्राफ you should find at least 4 solutions or 3 means more than 2 you should find. Okay, so here सबसे पहले तो हम यही देख लेते हैं कि इफ़ वी पुट x इज इक्वल्स टू 0, यहाँ पर आप डायरेक्ट, बार बार आपको वो सब कुछ नहीं लिखना पड़ेगा, आप डायरेक्ट यहाँ पर इस इक्वेशन की हेल्प से फिर x इज इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे, देन यू विल गेट डायरेक्टली y इज इक्वल्स टू 4. ओके, x इज इक्वल्स टू 1, यहाँ पर देख लीजिए अब आराम से बहुत ही, x इज इक्वल्स टू 1 यू विल गेट y इज इक्वल्स टू 3. Okay, x is equals to 2, you will get y is equals to 2, or one solution can be y is equals to 0, x is equals to 4. ठीक है, 0,4, 4,0. ओके, सो यहाँ पर आपको ये 4 सोल्यूशन मिल गए। नाउ इसके बाद सीधा आपको क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है। ओके, सो यू विल यूज पेंसिल while drawing the graph. I am using pen so that it will be visible to you. So class, the graph of question number 1, first part, you can see here. So the points were 0, 4, 1, 3, 2, 2 and 4, 0. So we will plot the points. 0, 4 means x एक्सिस पर 0 वॉक करना है, ठीक है ना, x एक्सिस पर 0 चलना है हमें, मीन्स कुछ भी नहीं चलना, एंड y पर 4, तो 0 से हम यहाँ 4 गए, दिस इज योर 0, 4 आपने मार्क कर दिया। देन 1, 3, टूवर्ड x you will move 1, then toward y you will move 3, this is your 1, 3. Then you have 2, 2, and this is your 2 on y, 2 on x. 4, 0, it means toward x you move 4, लेकिन y की तरफ आपको कुछ भी नहीं चलना है, so it is your 4, 0, because y का कोऑर्डिनेट जो जिसको आप ऑर्डिनेट भी बोलते हैं, that is 0, therefore you
you need not to move anywhere, and the 4,0 lie on the x-axis. You can see here that 4,0 lie on the x-axis. In general, you can say x, 0 lie on the x-axis, and you can see that 0,4 lie on the y-axis. In general, you can say 0, y lie on the y-axis. Now make drawing the line joining these points. So this is the equation. This is your equation, x plus y is equals to 4. So ये आपका x plus y is equals to 4 equation का graph है, और the linear equation in two variable has infinitely many solutions, because इस line पर आपको पता है कि एक line पर infinitely many points exist करते हैं. तो इस line पर जितने भी points exist कर रहे हैं, all are the solution of x plus y is equals to 4. Therefore we say that a linear equation in two variable has infinitely many solutions. Okay class, this is all for today's video lecture, and you should try the question number 2 and question number 3, and in the next class on Tuesday we will be having two video lecture. We have 2 periods, and in one we will discuss the questions, and we'll try to finish up this chapter by the next week. Okay, thank you class for watching the video. Watch the complete video and make the notes and try the questions of exercise 4.3. Okay class.